નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, લોકમંચ કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે અને લોકમંચ કાર્યક્રમમાં વાત કરીશું ઉત્તર પ્રદેશની, જ્યાં ચૂંટણી યોજાવાની છે. એવું કહેવાય છે કે જો દિલ્હીની ગાદી તમારે સર કરવી હોય તો ઉત્તર પ્રદેશની ગાદી સર કરવી પડે, અને ઉત્તર પ્રદેશથી રસ્તો દિલ્હીની ગાદી સુધી જતો હોય છે. કારણ કે 403 સીટોનો જે આ જંગ છે ને એને લઈને જે રાજકીય પાર્ટીઓ વચ્ચે ધમાસાણ વધ્યું છે. ચૂંટણી આયોગે તો હાલાકી એવું કહ્યું છે કે 15 જાન્યુઆરી સુધી, તમારે ફેબ્રુઆરી સુધી કોઈ પણ રેલી કરવાની નથી અને કોઈ પણ સભા કરવાની નથી. પરંતુ જે પ્રમાણે ક્યાંક એવું કહેવાય કે શુક્રવારે જે રેલી જોવા મળી, આમ તો એને પ્રેસ વાર્તા અને વર્ચ્યુઅલ રેલી કહેવામાં આવે છે, એવી સમાજવાદી પાર્ટીએ આ રેલી કરી. પરંતુ આ વર્ચ્યુઅલ રેલી નથી. જેટલા સમર્થકો અથવા જેટલા નેતાઓ જે સમાજવાદી પાર્ટીમાં જોડાયા છે, આમ તો 3 દિવસમાં ભાજપમાંથી 10થી વધુ ધારાસભ્યો, અને એમાં 3 તો મંત્રી કે જે સમાજવાદી પાર્ટીમાં જોડાયા છે, એમણે કદાચ કહેવાય કે પોતાની તાકાતનો પરિચય બતાવ્યો. એમના સમર્થકોની ભીડ જોવા મળી, સોશિયલ ડિસ્ટન્સના ધજાગરા ઉડ્યા અને લોકો મોટી સંખ્યામાં આ રેલીમાં ઉપસ્થિત રહ્યા. સવાલ એ છે કે આ જે જંગ ચાલી રહ્યો છે એમાં એક એ થાય છે કે કેમ લોકો ભારતીય જનતા પાર્ટીને છોડીને સમાજવાદી પાર્ટીમાં જોડાઈ રહ્યા છે, આ એક સવાલ છે. અને ખાસ જે કોંગ્રેસે પણ હવે આ ચૂંટણી જંગમાં જે ઝંપલાયું છે, 125 ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી છે ને એમાં મહિલા કાર્ડ ખેલ્યું છે, એટલે એમાં 50 મહિલાઓનો સમાવેશ કર્યો છે જે યાદી જાહેર કરી છે એમાં. અને ઉત્તર પ્રદેશમાં આમ તો એવું કહેવાય છે કે મુખ્ય મુકાબલો ભારતીય જનતા પાર્ટીનું ગઠબંધન અને સમાજવાદી પાર્ટીનું ગઠબંધન, આ બેની વચ્ચે છે. તો બીજો સવાલ એ થાય કે આમ આદમી પાર્ટી, કોંગ્રેસ, AIMIM એ પણ પોતાનું નસીબ ક્યાંક અજમાવશે. તો બહુ જ ચૂંટણી રસપ્રદ રહેશે. પરંતુ ખાસ યોગી આદિત્યનાથે જે 80-20 80-20ની જે ફોર્મ્યુલા આપી છે એની સામે સ્વામી પ્રસાદ મૌર્ય છે, એમણે 80-15ની ફોર્મ્યુલા આપી છે. અને સવાલ એ છે કે આ જે ફોર્મ્યુલા છે 80-20 એ કેટલી કારગત નીવડશે, અને સામે જ જે 85-15ની જે ફોર્મ્યુલા સ્વામી પ્રસાદ મૌર્યએ આપી છે એ કેટલી કારગત નીવડશે. કારણ કે 80-20નો મતલબ એવું માનવામાં આવે છે કે ભાજપ તરફી 80% હિન્દુઓ છે, 20% મુસ્લિમો વિરુદ્ધમાં છે. અને 85-15ની જે ફોર્મ્યુલા હમણાં જે સ્વામી પ્રસાદ મૌર્ય એમની સામે જાહેર કરી છે, એ 85%માં ક્યાંક એવું કહેવાય છે કે જે દલિતો છે, વંચિતો છે, મુસ્લિમો છે એ, અને 15% સવર્ણ. એટલે આ જંગ જે છે બરાબર જામવાનો છે. અને બ્રાહ્મણોની નારાજગી પણ યુપીમાં દૂર કરવાની છે. એટલે જોવાનું રહેશે કે આ ચૂંટણી કેટલી રસપ્રદ રહેશે. ને એને જ લઈને યુપી સાથે સંકળાયેલા યુપીના 2 વરિષ્ઠ પત્રકારો મારી સાથે જોડાયા છે. એક લખનૌથી જોડાયા છે संजय तिवारी. संजय जी, स्वागत है आपका. और हमारे साथ दिल्ली से यूपी के हर्षवर्धन पांडे, वो भी एक पत्रकार है. हर्षवर्धन जी, आपका भी स्वागत है. यस संजय जी, पहला सवाल ये हो रहा है कि क्यों ये सब जो MLA इस्तीफा दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में से और समाजवादी पार्टी में जुड़ रहे हैं, हालांकि उसमें से 3 तो मंत्री है. जी जी, क्या वजह है? देखिए देखिए इसमें कुछ वजह नया नहीं है. ये लोग 1 साल पहले से अपनी योजना बना चुके थे, इनको जाना ही था. ये वो लोग हैं कि जब देखते हैं कि सरकार 5 साल चल गई और इनको दूसरी जगह पे ज्यादा महत्व मिलेगा, तो ये लोग हमेशा से दल बदलते रहे. अच्छा. इनके सबसे बड़े नेता जो कहे जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी. स्वामी प्रसाद मौर्य का इतिहास ये है कि वो राष्ट्रीय लोकदल से आए थे. चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी से वो आए, फिर जनता दल में शामिल हुए. जनता दल में शामिल होने के बाद वो मुलायम सिंह जी के साथ रहे कुछ दिनों तक. उसके बाद वो बहन जी का पैर पकड़ के बहुजन समाज पार्टी में चले गए. बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए वो मिनिस्टर बने और बहुत प्रभावी नेता बने अपने ढंग से. और उसके बाद 5 साल वो भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे से बड़े दबंगई के साथ वो रहे हैं. उनको बड़ा मंत्रालय भी दिया गया था. और उनकी बेटी उसी के साथ जो है वो अभी लोकसभा की सांसद हैं बदायूं से. और उनके बेटे को भी पिछली बार टिकट दिया गया था ऊंचाहार से, लेकिन वो हार गया. इस बार वो फिर अपने बेटे को टिकट देना चाह रहे थे. पार्टी ने इस बार स्पष्ट कह दिया कि हम एक परिवार से एक व्यक्ति के अलावा किसी को टिकट नहीं देंगे. ये पहला फ्रेम था. बिल्कुल. दूसरा ये कि ये जितने लोग निकले हैं, आपके प्रश्न से ही एक प्रश्न निकल जाता है कि पहले तो हल्ला इन्होंने किया कि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण नाराज है, और निकले कोई ब्राह्मण नहीं, एक भी ब्राह्मण नहीं निकला है. बराबर. जितने निकलने वाले हैं ये सब वो लोग हैं जो या तो समाजवादी पार्टी से आए थे, या बहुजन समाज पार्टी से आए थे, या कहीं बाहर कांग्रेस वगैरह से आए थे. अच्छा, मूल भाजपा कोई नहीं है. पार्टी का कैडर निकल के नहीं गया.
जी जी। यस यस। तो भाजपा का कोई कैडर निकल के नहीं गया है, बिल्कुल। और आज जो ज्वाइनिंग इन लोगों ने दिखाई है, ये बहुत बड़ा बम फोड़ने वाले थे। आज इन्होंने कहा था, जब ये जिस दिन इस्तीफा दिया था इन्होंने, उस दिन इन्होंने कहा था कि मैं 14 तारीख को बहुत बड़ा विस्फोट करने वाला जी। आज जो इन लोगों ने समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अपना एक प्रदर्शन जैसा किया, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी हुआ, लगभग 2500 से 3000 लोग वहां इकट्ठे थे, एफआईआर भी दर्ज हुई है। दर्ज हुआ है। यस। हाँ हाँ, एफआईआर दर्ज हो गई। और वहां आज जो इन्होंने भाषण दिया है, वो भाषण बहुत चौंकाने वाला है और बहुत खतरनाक है, सामाजिक दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी, और देश के लिए भी घातक है। और एक तरह से गाली की भाषा में उन्होंने बात की है, बिल्कुल गाली की भाषा सवर्णों के लिए। अच्छा। तो ये अभी हमको लग रहा है कि अखिलेश यादव को ही बहुत महंगा पड़ने जा रहा है। अभी जो अखिलेश जी ये समझ रहे थे कि जो ब्राह्मण नाराज है भाजपा से, या सवर्ण नाराज है, या योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में जिनके काम नहीं हो पाए, या उनसे जो असंतुष्ट थे, वो फ्लोटिंग वोट्स अखिलेश यादव जी पा जाएंगे, तो आज तो स्वामी जी ने उनका एकदम बकिया उधेड़ दी। स्वामी जी ने सारे वोट्स आज भाजपा की तरफ कर दिए, और इसका रिपरकशन पूरे प्रदेश में गया है। और दूसरी बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हो या ओम प्रकाश राजभर हो, या इस तरह के जितने भी गठबंधन अखिलेश जी कर रहे हैं, ये सारे जातियों के गठबंधन वाले जो नेता हैं, इनको 10 सीटें 15 सीटें आप दे रहे हैं, इनके पास लड़ाने के लिए अपने लोग नहीं है, ये तो दूसरों को ही लड़ाएंगे, ये अपने टिकटें ब्लैक करते हैं। हमारे संज्ञान में है, मैं प्रामाणिक तौर पर इस बात को कह सकता हूं कि एक पार्टी जो इनके साथ गठबंधन में है, उसको इन्होंने सीटें अलॉट कर रखी हैं, और वो बाहर के प्रत्याशियों से संपर्क कर रहा है कि भैया तुम इतना दे दो तो तुमको टिकट दे दे, तुम इतना दे दो तो दे दे। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीति जो पिछले 30 वर्षों से चल रही थी, जिस तरह से ये लोग चला रहे थे, दल बदल, इधर से टूटे उधर गए, उधर से टूटे उधर गए। भारतीय जनता पार्टी को 2017 में जरूरत थी, ये लोग आए, इन लोगों का भाजपा ने स्वागत किया, लेकिन जो मलाई खाने ये लोग आए थे, वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में मलाई नहीं खा। अच्छा संजय जी, योगी जी के जो 80-20 मतलब 80-20 की जो फॉर्मूला है, उसका मतलब क्या निकाला जाए? 80% हिंदू भाजपा के साथ है, 20% मुस्लिम है, वो भाजपा के विरुद्ध है, यही इसका मतलब निकाला जाए? वो सीधा सीधा मतलब योगी जी के भाषण और योगी जी की सारी बातें बड़ी स्पष्ट होती। अच्छा, तो ये तो छिपा के बात नहीं करते हैं, ये तो सांप्रदायिक फॉर्मूला हो गई ना। हाँ, संजय जी सीधे सीधी योगी जी ने अपना हिंदू कार्ड खेला बहुत सलीके से, और आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने उसको काटने के लिए सवर्ण और पिछड़ा कार्ड खेला। इन्होंने आज कहा कि 85 और 15 का फार्मूला है, 85% हमारे साथ है, 15 उनके साथ हैं। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये समाजवादी पार्टी का जो आज प्रदर्शन था, जो इससे उम्मीद जगी हुई थी, सभी लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं। जितने भी नाम आए हैं अभी तक, चाहे वो शाक्य का नाम हो, चाहे वो वर्मा का नाम हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य का खुद का नाम हो, चाहे इनके साथ और जुड़ने वाले जो 12-13 लोग थे, ये सारे के सारे बारे में पिछले 1 साल से सबको पता था कि ये भाजपा के साथ रहने वाले लोग नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी से ये बाहर जाएंगे, क्योंकि इनमें से अधिकांश के टिकट भारतीय जनता पार्टी नहीं देने वाली थी। यस, बिल्कुल नहीं। हालांकि उनको भी पता था कि हमें टिकट नहीं मिलने वाली, और दूसरा आपने बताया कि परिवार में से एक ही आदमी को, मतलब एक ही इंसान को टिकट मिलेगी, तो इनको पता था, तो इन्होंने छोड़ दिया। तो इसमें भाजपा को कोई फर्क पड़ता नहीं है? बिल्कुल नहीं। ओके, हर्षवर्धन जी मेरे साथ है, मैं उनसे भी, यस, मैं संजय जी आपके पास आ रहा हूँ। हर्षवर्धन जी, आप क्या मानते हैं, जिस तरह ये रैली हुई, प्रदर्शन रैली हुई, प्रेस वार्ता हुई, कहने को वर्चुअल थी पर काफी मात्रा में भीड़ देखने को मिली, हर्षवर्धन जी क्या मतलब इसका निकालते हैं, या जो उम्मीदें थी इस रैली से, उम्मीदें भर आई है उत्तर प्रदेश में? उम्मीदें पूरी होती नहीं दिख रही हैं। उससे पहले मुझे लगता है चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है, उसका भी एक तरह से साफ तौर से उल्लंघन करती हुई नजर आई है आज यहाँ पे जो रैली है। इसको देखें, इस पे आयोग अपना संज्ञान लेगा और कोई ना कोई इस पे फैसला आएगा मुझे लगता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा स्थितियों में इसमें बदलाव आएगा। जैसा कि संजय जी कहते हैं, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। बीजेपी का जो कोर वोटर है, वो आपके पास योगी जी का जो भी कोर वोट है, वो उसके पास है मजबूती के साथ, और इस तरह ये पार्टी में एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाना, आना जाना चलता रहता है। क्योंकि जैसा संजय जी कह रहे हैं, मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी इस समय सर्वे करी है, और मेरी जानकारी जहां तक है 4 से 5 सर्वे यहाँ पर हो चुके हैं। उसमें
पहले पहले दौर में जो है इस बात की बात चली थी कि 150 विधायकों का टिकट काटेंगे साहब, फिर उसके बाद 100 पे आया, और अब जो पक्की जानकारी है करीबन 50 से 60 विधायक जो सीटिंग है उनका टिकट साफ तौर पे कट रहा है, और इसको देखते हुए ही वो क्या है पाला बदल रहे हैं अपना। और दूसरा अच्छा। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर यह है कि जो पिछड़े दल के नेता हैं, अब जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, क्या इनके साथ पूरा 6% के आसपास का जो मौर्य वोट है वो अपने साथ ले जाएंगे? ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप ये देखिए कि अब थोड़ा राजनीति जो है बदल चुकी है। अब हम उस दौर की राजनीति में नहीं है कि जो 90 के दशक में हुआ करती थी एक दौर में। अब वोटर भी इस बात को समझ रहा है कि उसको कब कहाँ कैसे वो वोट करना है। और हाल के समय में योगी आदित्यनाथ जी की जिस तरह की छवि है हिंदुत्व वगैरह की, और जिस तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं यहाँ पर यूपी के अंदर चली है, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल बदलाव हो जाएगा। और आप देखिए जितने तमाम सर्वे अभी हाल के समय में आ रहे हैं यूपी में, उसमें आपने एक बात ये देखी होगी कि 40% के आसपास सब बता रहे हैं कि बीजेपी का जो वोट है वो उतना मिल रहा है। तो आप ये बताइए मुझे कि वोट कहाँ कम हो रहा है बीजेपी का? उसका वोटर जो है स्ट्रांग है, और नहीं आज भी नहीं, वो एक बात सामने आ रही है ना कि भाजपा से ओबीसी बिछड़ रहे हैं, दलित भी टूट रहे हैं, उनके भी वोट कम हो रहे हैं या सपा में जुड़ रहे हैं। एक बात ये भी आ रही है यूपी से, तो ये फर्क नहीं पड़ता? ये कुछ नहीं, ये जैसे जैसे आप देखिए चुनाव आगे बढ़ेगा, अभी तो ये प्रत्याशी वगैरह जो है अभी तय होने बाकी हैं, और उत्तरायण के बाद जैसे मकर संक्रांति आज, इसके बाद से जो है जिस तरह से टिकट बटेंगे, तो उस तरीके से ये चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें बदलेंगी। लेकिन मुझे अच्छा। व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का साफ जो है अपनी रणनीति है, उसके पास मैनेजमेंट है, कैडर है, उसके साथ आरएसएस है, सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात जो है, चुनाव आयोग ने जिस तरह से कहा है कि वर्चुअल जो रैलीज हैं वो आयोजित वगैरह की जाएंगी, अगर ये 15 तारीख के बाद बढ़ता है तो मुझे लगता है अन्य जो छोटी पार्टियां हैं इनकी जो है दिक्कतें जो है यहाँ पर बढ़नी है, क्योंकि आपके पास कैडर नहीं है, आपके पास संगठन नहीं है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो मुख्य लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी वर्सेज भारतीय जनता पार्टी के बीच यहाँ पर नजर आ रही है। चाहे आम अच्छा। आदमी पार्टी की बात कर लीजिए आप, या कांग्रेस की कर लीजिए, कहीं मुकाबले में नहीं है। आपके पास संगठन नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए नहीं, प्रत्याशी नहीं थोड़ी है। बहुत और असर करेंगे ये आम आदमी पार्टी या एआईएमआईएम है या इन दोनों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को हालांकि बात नहीं कर रहे। ये दोनों पार्टियां कई सीट पर थोड़ी बहुत असर करती दिख रही है हर्षवर्धन जी? ऐसा मुझे लगता नहीं है, यहाँ बिल्कुल पर अब मैदान साफ में ही तौर नहीं है? पे मुकाबला हो गया। अखिलेश इस बात को समझ रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को पराजित करना है, हराना है, तो आपको जो है अपनी स्ट्रेटेजी अलग तरीके से चलनी पड़ेगी। तो वो वही अच्छा। कार्ड चल रहे हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं उनके कुछ दर्जन भर नेताओं को जो है अपने साथ लाइए, कभी विधायकों को लेके आइए, कभी कुछ करिए, तो वो हम्म। उनकी अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर जो है हिंदुत्व को लेकर यहाँ पर आगे बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है वो भी है। और हाल के समय में जिस तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं यहाँ पर यूपी के अंदर हुई हैं, इसको लेके ही योगी आदित्यनाथ आगे जा रहे हैं। और दूसरी बात, ईमानदार सरकार, भारतीय जनता पार्टी, आप ये कह सकते हैं कि हम ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रहे थे। और अखिलेश जी का आपने दौर देखा 2012 से लेकर कैसा दौर रहा, उसमें किस तरह से मतलब ईमानदारी नाम की कोई चीज नहीं थी। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, और आप इस योगी सरकार की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत हद तक यहाँ पर काफी मजबूत रहा है इनकी सरकार के टाइम में। आप देखिए अखिलेश के टाइम में किस तरीके से कानून व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ जाती थी, खुलेआम जो है ये हत्या हो गया, बलात्कार हो गया, इस तरह की कई घटनाएं जो है यूपी के अंदर देखने को मिलती थी। तो अच्छा ये एक हर्षवर्धन बहुत जी, बड़ा शॉर्ट में मुद्दा अगर है। पूछता हूं, हर्षवर्धन जी अगर शॉर्ट में पूछता हूं, हिंदुत्व का मुद्दा ही ज्यादा चलेगा यूपी में, क्या लगता है? मुझे लगता है क्योंकि जो आपका सवर्ण वोटर है, और जिस तरह से काशी कॉरिडोर बना है, भव्य राम मंदिर बना है, अयोध्या से योगी आदित्यनाथ खुद जो है चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो एक तरह से पूरा माहौल बनाया जा रहा है। और मैं आपको जानकारी के लिए ये बात भी बता दूं, अभी शायद भारतीय जनता पार्टी इस बात पर भी दिल्ली के अंदर मंथन कर रही है कि कई बड़े पैमाने पर जो सांसद हैं, और जैसे केशव केशव प्रसाद मौर्य है वो भी मैदान में आएंगे, दिनेश शर्मा जो है वो भी चुनाव लड़े, योगी आदित्यनाथ खुद लड़े। तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी अलग तरह की है, वो चाह रही है कि हर तरीके से विपक्ष को जो है वो कमजोर किया जाए, और उसके खिलाफ मजबूत प्रत्याशी जो है कहीं ना कहीं लाया जाए। और वोटर तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उनके पास एक बहुत बड़ा कैडर है, उनके पास पन्ना यस। प्रमुख है, उनके पास अच्छा बूथ का मैनेजमेंट है, और उनके पास अच्छा कैडर है जो हर चुनाव में उसकी जीत का मार्ग प्रशस्त करता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पर नरेंद्र मोदी और अमित भाई शाह जो है वो खुद उनके पास हैं, जो चुनाव के लिए अलग तरीके से रणनीति बना रहे हैं। और खुद अमित शाह जो है मुआयना कर रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की रणनीति बनाने में, जेपी नड्डा खुद साथ दे रहे हैं। तो आप ये देखिए कि एक इस तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट जो है चलो भारतीय जनता संजय जी पार्टी का नजर आ सवाल रहा ये है। है। जी हर्षवर्धन, संजय जी सवाल ये है कि हर्षवर्धन स्वामी प्रसाद मौर्य जबकि समाजवादी पार्टी में जुड़े उसके बाद वो जो बोले आज रैली में
कि ये लड़ाई 80-20 की नहीं है, 85-15 की है। और उसमें भी उन्होंने बोला है कि जो समाजवादी, लोहियावादी और आंबेडकरवादी, ये सब हमारे साथ है। ये जो दावा है उसमें कितना दम लग रहा है। और दूसरा, सांप्रदायिक फॉर्मूला के सामने ये जातिगत फॉर्मूला है, ये हथकंडा कितना सफल हो सकता है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो आज बोला है उससे उन्होंने समाजवादी पार्टी का ही नुकसान किया है। कैसे? उसकी सबसे बड़ी वजह मैं बता दूं, जिन दलितों, पिछड़ों, वंचितों की ये लोग बात करके अपनी राजनीति चमकाते थे, या विधायक बनते थे, या मिनिस्टर बनते थे, या दलों को बार्गेन करते थे, उन दलितों, उन पिछड़ों, उन वंचितों तक सरकार की वे योजनाएं सीधे पहुंच चुकी हैं जिसको नरेंद्र मोदी जी पहुंचाना चाह रहे हैं। अच्छा, दलित, वंचित और बिछड़े ये मानते हैं कि भाजपा ने हमें कुछ दिया है, उनकी योजना हमारे तक पहुंची है? आप गांव में चले जाइए, देखिए जिसके घरों में 70 किलो अनाज जा रहा है, सरसों का तेल जा रहा है, जिसके घर में लकड़ी नहीं होती थी इस जाड़े में, आज उसके घर में गैस है, बिजली नहीं मिलती थी। आप देखिए, उत्तर प्रदेश के पिछले सभी चुनाव आप देखेंगे तो उसमें 5 मुद्दे आते थे। सबसे बड़ा मुद्दा आता था पूर्वी उत्तर प्रदेश का गन्ना, वो मुद्दा इस बार नहीं है। बिजली एक मुद्दा आता था, वो मुद्दा नहीं है। गरीबी एक मुद्दा आता था, वो मुद्दा नहीं है। पिछड़ापन एक मुद्दा आता था, वो मुद्दा नहीं है। सड़कों का मुद्दा आता था, वो मुद्दे नहीं है। पूरे के पूरे 5 जो प्रमुख मुद्दे उत्तर प्रदेश के होते थे हर चुनाव में, इन्हीं को लेके बसपा भी लड़ती थी, इन्हीं को लेके सपा भी लड़ती थी, इन्हीं को लेके कांग्रेस भी लड़ती थी। भारतीय जनता पार्टी तब सत्ता में नहीं होती थी। आज की तारीख में इन सारे मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया। अब मुद्दा क्या है? आप सोचिए कि चुनाव की घोषणा से ठीक पहले काशी कॉरिडोर का प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी प्रधानमंत्री जी काशी में, अमित शाह जी अयोध्या में दर्शन कर रहे होते हैं। मथुरा में उधर केशव प्रसाद मौर्य जी ने मथुरा को लेकर के अपनी बात कह दी जी। उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति पिछले 40 वर्षों में जिस ढंग से चली है, उन 40 वर्षों में कोई स्थायी सरकार 5 साल चली नहीं। एक अखिलेश की चली थी 5 साल किसी तरह खींच खाच के, और योगी जी ने बड़े सलीके से, माने जैसे भी चली, लेकिन योगी जी ने दावे के साथ 5 साल सरकार चलाई। इसमें क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ, वो अब विवेचना का विषय हो सकता है, उस पर बात हो सकती है, उसकी कमियां हो सकती हैं, वो सारी चीजें हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि जब आप जानते थे कि ये सारे जाने वाले हैं तो इनको पहले ही आप हटा दिए होते। पहले हटाते तो ये विक्टिम कार्ड खेलते। उस समय ये अपने को बताते कि देखो मैं दलित था, मैं हटा दिया गया, देखो मैं वंचित था, मैं एक मुद्दा बन जाता है। यस, ठीक। आज की तारीख में जब पूरे 5 साल कंप्लीट हो गए, चुनाव की तिथि आ गई सामने, उसके बाद आप कह रहे हो कि दलितों और वंचितों और पिछड़ों और उनके साथ अन्याय हो रहा था इसलिए मैं त्याग पत्र दे रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य का दो मुहा चेहरा कितना, मतलब इस पर बहुत रिएक्शन है प्रदेश में। आज जब उन्होंने भाषण दिया है कि अगर तुम इतने खुददार हो तो तुम अपनी बेटी को ऐसे सांप और नागों के बीच में क्यों छोड़ रखे हो? तुम भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हो सांपों की पार्टी है, नागों की पार्टी है, और तुम्हारी बेटी यहीं पे सांसद बनी पड़ी हुई है, तुम उसको क्यों छोड़ रखे हो? यानी तुम हर हाल में चाहते हो कि तुमको सत्ता की मलाई मिले। बिल्कुल बिल्कुल। सत्ता की मलाई जो ये लोग खा रहे थे ना दल बदल करके, चूंकि अब दल बदल की राजनीति समाप्त होने जा रही है। पर संजय जी, फिर भी इसके बावजूद मानो कि समाजवादी पार्टी जब रैलियां करती है, अब चुनाव घोषित हुआ उससे पहले चुनाव तिथि तो अब आई, बहुत सारी भीड़ देखने को मिलती थी रैली में, झंडे, लोग, और ऐसा लगता था कि इस बार ये टक्कर देगी समाजवादी पार्टी। उसकी तो वजह ये पिक्चर क्या था? यस, उसकी वजह है। हाँ हाँ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो बहुत शांत है इस समय। आप देख रहे होंगे कोई रिएक्शन कहीं से नहीं आता। अच्छा, योगी जी ने कड़ी से कड़ी कार्रवाइयां की हैं, लेकिन कहीं से कोई रिएक्शन नहीं आया। वो समय की प्रतीक्षा में थे। अच्छा, दूसरा, जो यादव वर्ग है उसका 90% जो समाजवादी पार्टी के साथ है, 10% तो भाजपा के साथ हमेशा रहा, बिल्कुल, लेकिन 90% समाजवादी पार्टी के साथ रहा है, आज भी है। ये दोनों मिलके, ये ऐसे लोग हैं जिनके पास पर्याप्त समय है जो सड़कों पे उतरते हैं, वो जाते हैं। उनका नेता आएगा तो उसको देखने जाएंगे, उनका नेता आएगा तो उसको सुनने जाएंगे, उनका नेता आएगा तो हर जिले में समाजवादी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी का संगठन एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के अलावा ऐसा संगठन है जो हर जिले में है। आप ये सोचिए कि अखिलेश यादव जी ने अभी कल 5 जिलों के जिलाध्यक्ष बदले। अच्छा,
अब आप सोचिए कि चुनाव शुरू हो गया, तुम्हारी पार्टी में लगातार बाहरी लोगों का आना जाना शुरू हो गया और तुम 5 जिलों का अध्यक्ष अब बदल रहे हो जब सब कुछ सामने है। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं घबराहट, कहीं ना कहीं बेचैनी, कहीं ना कहीं परेशानी है। और दूसरी चीज कि देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है। बिल्कुल, मैं इसको पहले भी कहता था, मैं आज भी कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश यदि भाजपा से जाएगा ना, तो विदेशी मीडिया जो बैठा हुआ है मोदी जी को छीनने के लिए, अच्छा, उसको आप नहीं रोक पाएंगे। अच्छा, बाकी दुनिया बाकी की स्टेट तरह में हो भी इसका जाएगी। फर्क, संजय जी, बाकी स्टेट में भी इसका फर्क पड़ सकता है। मान लो कि मैं यूपी में बाकी नहीं स्टेट नहीं, तो मान अपनी लो जगह। भाजपा आ जाता है पर जी सीटें इतनी नहीं मिलती है, कम जी होती है, तो जी। इसका भी इफेक्ट आएगा। नहीं, इसका इफेक्ट इसलिए नहीं आएगा कि विजय विजय होती, पहली बात। संजय जी, लास्ट में मुझे ये बताइए, इसमें कांग्रेस कहाँ है? प्रियंका गांधी खुद जो झंडा लेके घूम रही है और महिलाओं का मुद्दा भी उठाया है, नारी हूं, लड़ सकती हूँ, ये सब चला है। और आई थिंक 125 जो उन्होंने मैंडेट भी दे दिए है, उसमें 50 महिला है। कांग्रेस कहाँ है यूपी में? देखिए, ये बहुत दुखद है कि आज भी जिले स्तर का संगठन उनके पास है, आज भी उनके लोग हैं, आज भी वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उनके पास लीडरशिप नहीं है। अच्छा, अगर लीडरशिप होती तो आज ये लड़ाई त्रिकोणीय होती और कांग्रेस कहीं ना कहीं खड़ी होती। पहली गलती उन्होंने पिछले इलेक्शन में कर दिया समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके, और इस बार उनकी निष्क्रियता आप देखिए। अखिलेश यादव ने पूरे 5 साल में योगी आदित्यनाथ को कहीं चुनौती नहीं दी। चुनौती देने 2 घटनाओं में, मिर्जापुर में और हाथरस में यदि आई तो प्रियंका गांधी आई थी, और प्रियंका गांधी ने एकदम नाको चने चबवा दिए। चाहे वो प्लान्ड घटनाएं थी, अनप्लान्ड थी, उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन जनता का ध्यान उसने खींचा, मीडिया का ध्यान उसने खींचा। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक एकदम ग्लोबल एक हाइप बनी रही। अखिलेश यादव ने जो सबसे बड़ी गलती की है कि 5 साल तक तो आप बोले नहीं है कुछ, किसी एक घटना पर आप घटना स्थल तक पे नहीं गए हैं। आज जब चुनाव आया है तो चूंकि सारी तरफ से, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाहर की फंडिंग बहुत ज्यादा इस इलेक्शन में हो रही। अच्छा, अब इसके बारे में सरकार जानती होगी कि कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, लेकिन पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया था। यानी ज्यादातर फंडिंग संजय जी भाजपा को मिल रहा है बाहर से, ऐसा माना जाए? भाजपा को नहीं, भाजपा को नहीं। देखिए, सपा को मिल रहा है। ग्लोबल लेवल पे आप एनालिसिस करिएगा, आप इस चीज को देखिएगा कि नरेंद्र मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री रहने के नाते कई ऐसे देश हैं जिनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप सोचिए कि हम हथियार केवल खरीदते थे, अब हम हथियार बेचने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम वैक्सीन 100 देशों को सप्लाई कर दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। हम किसी देश से कर्जा नहीं ले रहे हैं। तो वे देश जो अपना ग्राहक हमको समझते थे और उसके नाते वो आज खुद ग्राहक बन गए। संजय जी, समय की मर्यादा पर हर्षवर्धन जी, आखिर में कौन सा मुद्दा चलेगा? 80-20 की फॉर्मूला, 85-15 की फॉर्मूला जो चल रही है, क्या हिंदुत्व का कार चलेगा? और भाजपा को कहां देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी जो सीधा, मतलब हम चाहते हैं कि मुकाबला है, क्या ये सीधा मुकाबला है या एक तरफी मुकाबला है? हर्षवर्धन जी, शॉर्ट में क्या कहेंगे? देखिए, कह सकते हैं मुख्य लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है, और इसमें हम बहुत हद तक जो है टिकटों के वितरण पे भी चीजें निर्भर करेंगी कैसा है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का जो मन है वो उन नैरेटिव सेट करने में माहिर है, और मेरा ऐसा कहना है कि हिंदुत्व का मुद्दा तो यहाँ पर चलेगा, और हिंदुत्व के साथ कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का मुद्दा ये भी। और संजय जी की इस बात से भी मैं इत्तेफाक रखता हूँ, जो मुद्दे पहले के चुनावों में चला करते थे एक दौर में यूपी में, वो नहीं है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे अभी हाल ही में देखें आप, कोविड काल में जो राशन वगैरह दिया, 5 किलो से आपने 10 किलो कर दिया, 5 लाख करोड़ का डायरेक्ट डीबीटी ट्रांसफर जो है वो हुआ है, तो लोगों को तो पैसा मिल रहा है ना। आप ये देखिए, दूसरा बिजली के रेट यहाँ पे आधे हो गए, तो ऐसे कोई मुद्दे ही नहीं है। सड़कें जो है वो आपकी बन रही हैं, तो ये कोई इस तरह के मुद्दे नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन है, कैडर है, पूरा नेटवर्क है, उनके पास स्टेमिना है, तो मैराथन में वो आगे है। अखिलेश किस तरीके से अपनी गोलबंदी करते हैं पिछड़ी जाति को साथ लाके, इस हद तक, बहुत हद तक ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना है। और वोटर आज का जान रहा है कब किस समय कैसा वोट करना है। आज बिल्कुल बिल्कुल, आप बोल रहे हैं उस हिसाब से वोटर बहुत होशियार है, किसको क्या मतलब समर्थन किसको देना है, वोटर बहुत कुछ जानते हैं। और जैसे संजय जी ने बताया कि वोटर्स खामोश है, हालांकि मुसलमान और तमाम वोटर्स अभी यूपी के खामोश है, वो आवाज करेंगे जब चुनाव होगा तब।
પણ સવાલ એ છે કે જ્યારે ઉત્તર પ્રદેશની જ્યારે ચૂંટણી થતી હોય છે ત્યારે મેં કહ્યું તેમ કે દિલ્હી જવાનો રસ્તો ઉત્તર પ્રદેશ છે, બહુ જ મહત્વનું આ ચૂંટણી છે અને ક્યાંક જે કહેવાય છે કે મુદ્દા બદલાયા છે. હિન્દુત્વનો મુદ્દો ચોક્કસ આવ્યો છે, રાષ્ટ્રવાદનો મુદ્દો આવ્યો છે, પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે જે પ્રમાણે બંને જે પત્રકારોએ કહ્યું કે જે નેટવર્ક છે, સંગઠન છે, કેડર છે અને પન્ના પેજ એટલે પેજ પ્રમુખની જે આપણે વાત કરીએ છીએ એ જે ગ્રાઉન્ડ લેવલે એક આખું એક ફોર્મેટ તૈયાર કર્યું છે એને લઈને ચોક્કસ ભારતીય જનતા પાર્ટીને સમર્થન મળી રહ્યું છે. પણ હિન્દુત્વનો મુદ્દો ચોક્કસ ઉત્તર પ્રદેશમાં ચાલશે. હાલાકી જે પહેલાના મુદ્દા હતા એ ક્યાંક ભૂલાયા છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે 80-20ની ફોર્મ્યુલા ચાલશે કે 85-15ની ફોર્મ્યુલા ચાલશે. હાલાકી મુકાબલો ભાજપ ગઠબંધન અને સમાજવાદી પાર્ટીના ગઠબંધન વચ્ચે જે રહેશે અને જોવાનું રહેશે કે સાંપ્રદાયિક ફોર્મ્યુલા કે जातिगत फॉर्मूला कई फॉर्मूला सफल થશે. ચર્ચાનો સમાપન કરીએ છીએ और चर्चा में भाग लेने के लिए संजय तिवारी, हर्षवर्धन पांडे दोनों उपस्थित रहे. थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया. તો દર્શક મિત્રો, લોકમંચ કાર્યક્રમમાં હતી ઉત્તર પ્રદેશની ચૂંટણીને લઈને જે ગરમાગરમી થઈ રહી છે અને જે મહત્વની ચૂંટણી છે એને લઈને ચર્ચા. ફરી મળીશું લોકમંચ કાર્યક્રમમાં એક નવા વિષય વસ્તુના મુદ્દા સાથે. જોતા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ. નમસ્કાર.